Okay, so good afternoon to everyone. Now, today this is the second lab session of our object-oriented programming. So, in this lab session, we will see the programming about what we have seen in the class, that method overriding problem, then do while problem, then our uh, class and object using the constructor, using the parameterized constructor, using the normal constructor, that is the default constructor. So all of this program we will see one by one today. So I will request to everyone so that you prepare your system, and with your system you sit down, so that which I will show you, you will able to run it, because there is not such thing that I will show you the program and if you didn't practice it then it will not help. So I would say that each and everyone, and already in the previous class I have shown that how to install using the first install the JDK, then after that in the JDK you have to copy the path. So all of that I have shown you in the previous lab class. So, and some programs I also started to show you. Now today I will show you that these programs, so you will use with your system, you will sit down with your system so that you will able to run that program. Okay, it is clear to everyone that I think in each and everyone the your system the JDK is installed. JDK is installed to everyone. Yes, तुम sir. सब ओके. तो हम एक एक प्रोग्राम जो है एक के बाद एक प्रोग्राम को रन करेंगे. प्रोग्राम को हम डिस्क्राइब करेंगे कि प्रोग्राम कैसे करेंगे. उसके बाद क्या है कि तुम लोग एज ए सिस्टम में क्या है इसके साथ साइमल्टेनियसली तुम लोग भी प्रोग्राम रन करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट प्रोग्राम आज जो हम लोग रन करेंगे वो है प्रीवियस क्लास में हम इफ एल्स कंडीशन तक दिखाते थे. इफ एल्स और लूप का कंडीशन स्टार्ट करे थे, लूप जो प्रोग्रामिंग था वो दिखाए थे. तो आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डू व्हाइल प्रोग्राम से. डू व्हाइल लूप कैसे हम लोग यूज करते हैं जावा में. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट वी हैव टू यूज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. सो this text document we have used. Now we will show the program of the do while. Let's say we are taking a, now you already know that the class keyword should be used before the class name. So like this the class keyword is given. Then after that let's say we are giving some name, and that I am giving, it is up to you that which name you should give. But one thing you should keep in mind, that the name you have given for the class, the file name should be same. The file name should be same for that. When you will save the program, then the class name you will give that class name dot java. So like this you will save the program. So here I have given fjd, like this I have given. So according to that, when I will save the program, I will do fjd dot java. Like this I will save the program. It should be keep in mind. So after that we are using the main public static void main. Okay, so inside the main there will be string, the name we are giving args string args. Now here I am assigning a value. Let's say I am assigning int I equal to 11. I am giving a value 11 for the I value, and this I is the integer type, and we are assigning the value 11 for the I. Okay, so next
the do while loop we will start. So how the do while loop should be written? We know that first do, and inside that do we will write the statement, and after that we will use the brace, and when we will complete the brace, after that we will write the while condition. This is the body structure of a do while. So that's why do while is always that if the condition is false also, then do while loop execute one time. क्या हम लोग जानते हैं कि while loop और while loop do while loop में डिफरेंस क्या है? while loop हम लोगों का conditions जो है वो आगे एकदम फर्स्ट में रहते हैं, while उसके अंदर condition. अब कोई कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तभी लूप के अंदर हम एंट्री कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग एंट्री नहीं कर पाते. बट डू व्हाइल लूप में क्या कंडीशन है कि मेरा जो कंडीशन है वो कंडीशन डू जो है उसके अंदर स्टेटमेंट रह के कंडीशन लास्ट में चेक होता है. तो इसीलिए क्या है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स भी हुआ तब भी मेरा क्या है, व्हाइल लूप वन टाइम रन करता है, डू व्हाइल लूप. मगर व्हाइल लूप में क्या होगा, रन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या है, कंडीशन फर्स्ट में ही चेक होता है. तो कंडीशन फर्स्ट में ही चेक हो गया कि वो हम लोगों का फॉल्स है, तो लूप के अंदर ऑब्वियसली वो नहीं आएगा. बट डू व्हाइल लूप में क्या है, कंडीशन बाद में चेक होते हैं, इसलिए क्या होगा, एट ए फर्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट टाइम अगर पकड़े तो फर्स्ट टाइम वो लूप के अंदर एंट्री करेगा. हाँ, उसके बाद क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टॉप कर जाएगा. तो फॉल्स भी अगर हुआ तब भी क्या है, मेरा स्टेटमेंट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है डू व्हाइल लूप में. ओके, तो डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, लेट से वी आर यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ओके, और उसके अंदर हम आई लिखें. ठीक है, मतलब आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे, और आई प्लस प्लस आई का इंक्रीमेंट. अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग व्हाइल का कंडीशन लिखेंगे. व्हाइल की लेट से हम लिख रहे हैं कि आई लेस देन इक्वल टू 10. ओके, और उसके बाद हम लोग इसको फिनिश कर दिए. ठीक है, अब देखो ये ऑब्वियसली क्या शो करेगा कि 11, आई का वैल्यू 11 है. तो आई का वैल्यू 11 है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो फर्स्ट टाइम क्या है, आई इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो 11 प्रिंट होगा. देन आई का क्या होगा, आई चेक होगा, 11 लेस देन 10, नो 11 इज नॉट लेस देन 10. तो इसके बाद से क्या है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा. बट वन टाइम ऑलरेडी ये स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट होगा कि आई का वैल्यू जो है 11 वन टाइम प्रिंट होगा. क्योंकि इधर क्या है, जब आ रहा है कंडीशन चेकिंग में, तब क्या कंडीशन दिखा रहा है, व्हाइल 11 लेस देन 10, तो ये फॉल्स है. तो फॉल्स मतलब क्या है, सेकेंड टाइम, और इस लूप का एग्जीक्यूशन नहीं होगा. तो ओनली वन टाइम जो है, ऑन वन टाइम ये शो करेगा. तो फर्स्ट हम इसको सेव करते हैं, मानो इसको डेस्कटॉप में ही सेव करेंगे. अब जो नेम हम दिए हैं fjd डॉट जावा, fjd डॉट जावा देके मुझे क्या करना है, मुझे उसको सेव करना है. क्लास नेम डॉट जावा देके हम लोग उसको सेव करेंगे. ठीक है, तो सेव हम कर चुके हैं. अब देखते हैं, देखो fjd का एक हम लोगों का क्रिएट हो गया fjd. सो ये क्या है, ये मेरा एक जावा प्रोग्रामिंग का जावा डॉट जावा फाइल बोल के ये मेरा क्रिएट हो गया. तो अब हम लोग को रन करने के लिए क्या करना है, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम लोग को फर्स्ट ये जो fjd फाइल है, ये कहाँ पे स्टोर है, हम लोग कहा जहां स्टोर किए थे उस लोकेशन में मुझे जाना है. तो हम लोग क्या है, इसको डेस्कटॉप में सेव किए. ये जो
है उसको हम क्या किए, डेस्कटॉप में सेव किए। तो डेस्कटॉप मतलब हम लोग कमांड यूज करेंगे cd डेस्कटॉप, क्योंकि मुझे इसके अंदर जाना है। तो देखो डेस्कटॉप के अंदर हम उस लोकेशन में आ चुका है। तो उसके बाद क्या है, कंपाइलेशन के लिए हम लोग जानते हैं जावा सी, जावा कंपाइलर, उसके बाद क्लास नेम डॉट जावा। तो क्लास नेम क्या है, fjd डॉट जावा। हम देखते हैं कि इसका कंपाइलेशन, यस कंपाइलेशन हो चुका, मतलब ये प्रोग्राम क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए क्या है, कंपाइल होके देखो fjd डॉट क्लास, मतलब बाइट कोड जो है मेरा, बाइट कोड क्रिएट हो गया। तो कंपाइलेशन के बाद जो जावा बाइट कोड है, वो बाइट कोड मेरा क्या हुआ, बाइट कोड मेरा क्रिएट हो चुका। अब इसको रन करने के लिए क्या है, देखो जावा, हम लोग जावा देन फाइल नेम ये लिखते हैं। तो देखो 11 क्या है, 11 वन टाइम प्रिंट हुआ, मेरा 11 जो है 11 वन टाइम प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से ये प्रिंट नहीं होगा ड्यू टू ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो। अगर मानो ये जो जगह है इसमें अगर हम 1 रखते तो मेरा ऑब्वियसली क्या होता, ऑब्वियसली मेरा इसको दिखाता, प्रिंट दिखाते इसको। तो हम उसको एक बार करते हैं, फर्स्ट कंपाइल करते हैं और उसके बाद अब देखो 1 to 10 टोटल क्या हुआ, प्रिंट करके दिखा दिए। तो इसके ऊपर ये जो डू व्हाइल लूप है, तो सेम जैसे हम लोग का सी में भी काम करते हैं, सेम टाइप से, सेम टाइप से हम लोग का इधर भी डू व्हाइल लूप काम करते हैं। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये गया हम लोग का डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम। नाउ वी विल मूव इनटू आवर मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ये तो गया हम लोग सिर्फ लूप जो है, इफ एल्स जो है, ये सब कंडीशंस हम लोग देखे। तो अभी जो है, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो इसमें क्या है कि सिर्फ हम एक कोई सिर्फ एक क्लास के अंदर क्या कि एक क्लास के अंदर मेन रखे, उस मेन के अंदर सिर्फ कुछ वेरिएबल्स यूज किए, उसको फिर प्रिंट कराए। तो नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम को हम लोग अभी तक देख चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को मेथड कॉल करना, देन कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है अभी वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो हम लोग का रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो लेट्स से हम लोग जो है फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट, और हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है हम लोग जो मेथड्स है उस मेथड को क्या है कॉल करेंगे। तो इसको देखो, इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट सेम एज दैट वी आर राइटिंग क्लास एंड गिविंग नेम एज क्लास fjd। तो सेम नेम हम रख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो इसका नेम थोड़ा मतलब चेंज कर देते हैं। देखो इसको नेम जो है उसका हम नया प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो नेम चेंज करके नया प्रोग्रामिंग करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक क्लास, जो एग्जांपल हम डिस्कस किए थे जब हम लोग तुम्हारा जब क्लास कंस्ट्रक्टर देन ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट ये सब डिस्कस कर रहे थे, तब हम ये जो एग्जांपल जो है इसको डिस्कस किए थे। तो उस एग्जांपल को क्या है हम लोग प्रोग्रामिंग जो है उस प्रोग्रामिंग में कर रहा है। नाउ आई विल शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट। लेट्स से वी आर टेकिंग अ क्लास एंड दिस क्लास नेम इज फैकल्टी,
ठीक है, मेरा एक क्लास हम ले रहे हैं, उस क्लास का नेम क्या है, उस क्लास का नेम है फैकल्टी। तो अब इस क्लास जो फैकल्टी क्लास है उसमें कुछ वेरिएबल्स हम यूज करेंगे। तो क्या वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं? देखो, एक हो सकते हैं हम फैकल्टी आईडी दे सकते हैं, फैकल्टी नेम दे सकते हैं, ऐसे कुछ वेरिएबल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से वी आर टेकिंग टू वेरिएबल्स, हम लोग टू वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक है कि फैकल्टी आईडी और अनदर वन इज द फैकल्टी नेम। ये दो वेरिएबल हम लोग ले रहा है। तो फैकल्टी आईडी मतलब क्या है कि नंबर, जो आईडी होगा ये नंबर बेसिस में होगा, नंबर बेसिस। सो वी आर कंसीडरिंग दैट फैकल्टी आईडी should be integer type. We are considering it. Let's say faculty ID. We are using this faculty ID as a integer type. And another variable, instance variable, which we are used here, we are using, let's say we are using the faculty name. Another instance variable we are using, that is the faculty name. So what will be the data type of the faculty name? Faculty name is the name, so that means we will use the string type. Let's say we will use the string type. So string faculty name. Okay, फैकल्टी नेम हम दे दिए दो इंस्टेंस वेरिएबल का। अब हम लोग क्या है, एक मेथड जो है, मेथड्स को हम लोग क्या है लिख रहा है, नेम दे रहे हैं मेथड का डिस्प्ले मेथड, और एज ए रिटर्न टाइप नथिंग, सो वी आर यूजिंग void। और इसमें क्या है कि हम लोग जो फैकल्टी आईडी और फैकल्टी नेम का जो वैल्यू देंगे वो डिस्प्ले करेगा। ये मेथड का काम है कि फैकल्टी आईडी और फैकल्टी नेम का जो वैल्यू हम लोग एज ए यूजर देंगे उसको क्या है प्रिंट करना। तो हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं system.out.println। ओके, और इसमें क्या है हम लोग यूज करेंगे फैकल्टी, let's say that faculty ID और ये कैसे फैक आईडी, तो फैक आईडी। ओके, and next is faculty name, and its name is fac name. Okay, so this is the method we have used. Now we are using the main public static void main string args। Now what I have to do, हमको अब इसके बाद क्या स्टेटमेंट हम करेंगे, कोई कह सकते हो क्या करना है अब उसके बाद मुझे? एनीवन कैन ट्राई, इसके बाद क्या करना है मुझे? एनीवन? मेथड को कॉल करेंगे, डिस्प्ले कॉल करेंगे। फर्स्ट मेथड को तो कॉल करेंगे, वो तो ठीक है, मगर फर्स्ट मेरा स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप मेथड को तो ऑब्वियसली कॉल करेंगे, मगर मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मेथड को अगर हम लोग कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना सर। यस, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे? फैकल्टी क्लास का। यस, तो फैकल्टी क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो लेट्स से फैकल्टी
हम नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट F1 इक्वल टू न्यू फैकल्टी। तो ऐसे क्या है, हम मेन के अंदर फैकल्टी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए। अब मुझे वैल्यू डालना है, फैकल्टी आईडी और फैकल्टी नेम ये दोनों में क्या है, मुझे वैल्यू डालने हैं। तो वैल्यू कैसे हम डालेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू तो डालेंगे हम लोग। तो मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, अभी F1 ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए, तो उस F1 के थ्रू हम लोग फैकल्टी आईडी, इसको क्या है, इसमें लेट्स से हम वैल्यू डाल रहे हैं 1। तो हमको फैकल्टी आईडी में क्या है, अभी एट दिस मोमेंट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। सो हाउ यू विल एबल टू पुट द वैल्यू, वी हैव टू कॉल दिस यूजिंग द ऑब्जेक्ट। तो F1 क्या है, हम लोग F1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है, मुझे वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, अब एक्सेस करने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट द इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसीलिए क्या है, F1 डॉट फैक आईडी, और उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू डालें। सेम एज दैट फैक नेम जो अनदर मेरा इंस्टेंस है, उसको भी क्या है, उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू F1 जो है, हम F1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो फैक नेम, और ये क्या था, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का था। तो ये मेरा क्या था, ये स्ट्रिंग टाइप का था। तो स्ट्रिंग टाइप का मतलब क्या है, स्ट्रिंग टाइप का मतलब, तो इसको हमको डबल ब्रेसेस के अंदर वैल्यू देना है। तो लेट्स से आई एम गिविंग द नेम एज अजय। अब अजय नाम मेरा सामने दिख रहा है, तो हम अजय एक डाले हैं, अजय। तो अजय हम दिए, ठीक है। इससे क्या है, मेरा अभी एक फैकल्टी जो है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, फैकल्टी क्लास का एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको एक्सेस किया, और उसमें क्या है, एक वैल्यू पुट किए। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास का डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट किया, हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस क्लास का बना सकते हैं, और उसमें क्या है, दूसरा वैल्यू डाल सकते हैं। तो लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ये तो एक ऑब्जेक्ट गया मेरा F1, हम लोग दूसरा एक ऑब्जेक्ट F2 बनाए उसमें, और F2 से क्या है, F2 से हम लोग फैक आईडी कॉल किए, और उसमें क्या है, डिफरेंट वैल्यू हम डाले। लेट्स से हम लोग डिफरेंट वैल्यू उसमें डाल दिए। डिफरेंट वैल्यू जो है, डिफरेंट वैल्यू देखो, हम लोग सेम क्लास का क्या किए, सेम क्लास का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। सेम क्लास, क्लास इज नॉट चेंजिंग, सेम क्लास, बट वी आर क्रिएटिंग different object, and through this object we are calling the instance variable, and we are putting, now also the instance variable name are same, the instance variable name is same, but you see the instance variable has different values, the instance variable has different values here. So like this we are creating a second object of the faculty class, and with this object what we are putting the different values of fac id and fac name. यही सिर्फ नहीं है, हम इधर दो यूज किए, हम लोग तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, चौथा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, हम लोग डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे कोई ये नहीं है कि तुमको इस क्लास का इतना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे, तुम n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो एक क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है तुम इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करके उसमें क्या है डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देखो, अगर फर्स्ट अभी तो क्या है हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है हम लोग वैल्यू पुट किए, जो फर्स्ट f1 जो है f1 को यूज किए, उसके बाद ये वैल्यू पुट किए, देन f2 हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फिर फैकल्टी आईडी फैकल्टी नेम को कॉल करके सेकंड जो है सेकंड वैल्यूज उसमें असाइन किए। अब क्या है हम ये जो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हिच वी हैव क्रिएटेड, थ्रू दिस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट वी विल कॉल द डिस्प्ले मेथड ऑफ दिस फैकल्टी क्लास, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही क्या है हम लोग मेथड को कॉल कर सकते हैं। थ्रू ऑब्जेक्ट वी विल ओनली एबल टू कॉल द मेथड। If the method is static, in that case if we mention static display, in that case we can directly call the method because that method will not be associated any object, that method is only dependent for the class। तो अगर कोई मेथड के आगे हम लोग स्टैटिक लिखते हैं तो वो जो मेथड है उस मेथड को ऐसे कुछ नहीं है कि उस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को हम लोग कॉल कर पाएंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि स्टैटिक मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब उस मेथड जो है वो मेथड कोई ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है, उस मेथड टोटली डिपेंडेंट ओवर द क्लास, सो वी कैन कॉल दैट मेथड विदाउट क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट, विदाउट क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल दैट मेथड। तो ऐसे इसमें एज ए एग्जांपल हम लोग उसको स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किए, तो इसका मतलब क्या है हमको ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को ये जो मेथड है उसको कॉल करना होगा। तो फर्स्ट जो दो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए, एक है f1 और एक है f2, सो यूजिंग f1 फर्स्ट वी विल कॉल द डिस्प्ले मेथड, then using f2 we will call the display method। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या है हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। नाउ वी विल सेव इट, लेट्स से वी आर गिविंग द नेम एज faculty dot java और हम लोग का क्या है देखो, फैकल्टी का ये जो जावा फाइल है, जावा फाइल क्रिएट हो चुका। जावा फाइल क्रिएट होने के बाद हमको क्या करना है, हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसको रन करेंगे अभी। तो मुझे उस लोकेशन में फर्स्ट जाना है, तो कौन सा लोकेशन में है, डेस्कटॉप में हम उसको सेव किए, देन जावा सी, तो उसके बाद फैकल्टी डॉट जावा। देखो बाइट कोड क्रिएट हो चुका है, यस बाइट कोड मेरा क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद रन करने के लिए जावा देन फाइल नेम। अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो दोनों वैल्यू करे थे, तो उसको क्या है देखो, हम डिस्प्ले जो मेथड है डिस्प्ले मेथड से उसको शो किए। फर्स्ट हम लोग फैकल्टी आईडी 1 दिए थे, देन फैकल्टी नेम अजय दिए थे, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या है इंस्टेंस में अनदर टाइप के अनदर वैल्यू दिए थे हम 2, और उसके बाद फैकल्टी नेम अमित दिए थे। तो दोनों ही क्या है हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से देखो उसको डिस्प्ले किए, सेम मेथड से डिस्प्ले किए। तो देखो ऐसे इसलिए शो किया मेरा। ठीक है, तो इसका ही देखो ऐसे शो कर रहा है, फैकल्टी आईडी 1 अजय, इसको किए ये f1 डिस्प्ले ये प्रिंट किया,
देन F2 जो है ये F2 मेरा क्या किया, F2 मेरा ये डिस्प्ले किया, ठीक है, जो वैल्यू हम असाइन किए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you have done the program on your system? Yes, sir. देखो ये जो है ऐसे, ये सिंपल एग्जांपल हम दिखाएं, मगर ऐसे ही प्रोसीड्योर है, ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसीड्योर कि कोई क्लास जो है उसका ऐसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्या है, कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो ऐसे हम लोग उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। ये गया कि हम लोग का सिंपल जो है, सिंपल क्लास का जो है, सिंपल यूजिंग सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, दिस प्रोग्राम वी हैव डन। तो ये हम एज ए एग्जांपल दिखाए थे तुम लोगों का जब हम थियोरेटिकल क्लास लिए थे, बट एज ए हम लोग देखो ये प्रैक्टिकल व्यू है कि ऐसे उस प्रोग्राम जो है, उस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप का प्रोग्राम गया। अब हम लोग देखेंगे हम लोगों का थर्ड टाइप का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हम लोगों का बेस्ड ओवर मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग जो है, मेथड ओवरलोडिंग हम लोग एज ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि मेथड का जो नाम है, मेथड का नेम वो सेम है, बट वी हैव डिफरेंट आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, but we have different parameters for that in our program. So we will show that. So let's say we will create another class. Let's say we are name it as class overloading. So we are giving a name of a class as overloading. That this program will do what? Through this program we will show the overloading concept. So the name of this is the class overloading. Then this is the name of the class. So let's say inside of it we are using a method. Let's say the method name is void sum and m1. तो ये क्या है, मेथड का नाम है। तो मेथड का नाम तुम जो भी दे सकते हो, ऐसे हम एक मेथड का नाम दे सम m1, ठीक है। और इसमें क्या है, एज ए पैरामीटर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, आई वैल्यू पास कर रहा है। और ये मेथड का काम क्या है, जो आई वैल्यू है, आई वैल्यू को प्रिंट करना, ठीक है। आई वैल्यू जो है, आई वैल्यू को प्रिंट करेंगे हम इसमें, ठीक है। Then we know in method overloading the name of the method should be same, but it will have different parameters. Parameters will be different, but the name of the method will be the name of the method will be same. So here we are using, let's say, another parameter. We are using int I comma int j, and what we are printing, we are printing the addition of this two variables. What we are passing, we are printing that addition of that two, that the two parameters we are passing I and j, we are printing what, we are printing the addition of that two numbers. Okay, and let's say we are, the name of the method will be the same.
So the another method we are using here, and in this we are using another variable, and here it will do what plus k. Okay, so you see all the methods which we have used here, all the method which we have used here have the same name. The name of that method are all same, that all the method has name sum at the rate underscore m1, sum underscore m1. But you see the arguments are different, that here only one argument is passed, here the 2 arguments is passed, here the 3 arguments are passed. So like this, the arguments are different but the name are same, and we are using public static void main, and inside it we are using string args. Okay, now what we have to do, we have to create the object first, because all, if you see in all of this method, there is no such method in there the static is mentioned. The static is not mentioned in anywhere, so that means this method is associated with the object. So we have to create the object first, and after that we have to using this object we have to call the method. So first we will create the object, that is overloading. Let's say the class name we are giving, the class name is what, overloading. So overloading object 1 equal to new overloading. That's how we are able to create the object. Overloading class object we are created. Now through this object we will call the method. Now